reported, and Gursimran had been bringing us all the updates on the RPG attack on a police station in Taran. It's a big development that we are getting in now. Gursimran joining us for this latest development. The FSL team has arrived at the attack site. Gursimran, tell us about the kind of recoveries that have been made, the conclusions, if any, that have been drawn so far. Already we do know that SFJ has claimed responsibility. It's a clear Khalistani threat to the peace and tranquility of Punjab. Yes, no doubt this is a threat. Right now we are in Punjab where the security has been beefed up. I'll request Sarjeevan to keep showing you the visuals that each and every vehicle that is crossing and is suspected is thoroughly being checked by the Punjab police. The troops have been deployed with the bulletproof jackets here to ensure that any nefarious plot of the enemy is foiled, and they are also keeping a track on each and every vehicle that is passing by. The mobile numbers, the vehicles are thoroughly being checked by the police so as to ensure that any untoward incident can be curtailed, because the kind of incident that has been reported in the Taran, this has now, the Punjab police has sounded an alert in the entire region, and each and every naka throughout the Punjab has been beefed up. See, the senior officials of the police are also here. Sir, पूरे पंजाब में अलर्ट कर दिया गया है? हाँ जी पूरे पंजाब में। सर, किस तरह से आप चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो तरन चेकिंग कर रहे हैं, प्रॉपर चेकिंग, जो तरन में ब्लास्ट हुआ उसके बाद अलर्ट किया? हाँ जी अलर्ट। तो क्या कहा गया है ऑफिशियल्स की तरफ से? ऑफिशियल की यार गाड़ी को देखो और चेक करो, अच्छी तरह चेक करो। तो सबकी डिटेल्स भी यहाँ लिखी जा रही हैं? हाँ लिखी जा रही हैं, वो सामने लिख दिया। Okay, so this is the update coming from the ground zero where the Punjab police is on the alert. Each and every vehicle that is coming and going from Punjab to and fro is thoroughly being checked. The details are being noted by the Punjab police. So the entire Punjab has been put on alert, keeping in view the threat that has been posed by the anti-national activities. The way the RPG attack has taken place on a police station in Taran and followed by the intelligence agencies' input, the entire area is on the alert. The Jawans of the Punjab police have been deployed here along with the automatic weapons, the bulletproof jackets. They have been deployed here at the ground zero so as to ensure that each and every plot of the enemy is foiled. Yes. Right, Gursimran. Earlier, you the Army Police, the NIA, RAW, as well as the INB, they are all at the spot investigating. You said that they're investigating into the aspect of whether there is a local angle, whether there were local contacts who would make this. Also that, you know, a similarity, lots of similarities. Was that the police who said it? Lots of similarities with the Mohali attack, where bike-borne terrorists had launched that attack as well. Also, Manjinder Singh Sirsa of the BJP has claimed that these attacks have seen a resurgence after the Aam Aadmi Party government in the state came into power. How justified would you say would be that comment? सी देखिए, लगातार जो है पंजाब में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उससे सरकार पे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि क्या सरकार की कार्यशैली क्या है। इस वक्त हम पंजाब में मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से पूरा इलाका जो है उसमें यहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से यहाँ पर लैस हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ। जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है पंजाब पुलिस का, उसकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि किसी भी आतंकी हमले को जो है समय रहते विफल किया जा सके, क्योंकि लगातार जो खतरा है वो बना हुआ है। हर एक गाड़ी जो कि संदिग्ध लग रही है, चाहे वो बाहरी राज्य की हो, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर साझा की जा रही हैं और ये जो डिटेल्स हैं ये लगातार ये हेडक्वार्टर्स में भेजी जाएंगी, यानी कि बाहरी नंबर की कोई भी गाड़ी या कोई संदिग्ध गाड़ी दिखती है तो उसकी डिटेल्स जो है हेडक्वार्टर के साथ साझा की जाती हैं। सर, ये आप हेडक्वार्टर के साथ साझा भी करते हैं रेगुलर? हाँ जी एसएसपी साहब ने दसी दा जी। एसएसपी साहब को बताया? हाँ जी। तो ये जो डिटेल्स यहाँ पर लिखी जा रही हैं, ये वाहनों की जो चेकिंग हो रही है, हर एक डिटेल जो है वो ज़िले के एसएसपी तक पहुँचाई जा रही है। ये जो है पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के जो आतंकी हमला है उसे विफल किया जा सके। लगातार आप देखिए कि जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं वो किस तरह से यहाँ पर गश्त कर रही हैं, यानी कि पूरे इलाके को यहाँ पर बीएसएफ की भी बात की जाए क्योंकि सरहद से लगा हुआ इलाका है, बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। पंजाब पुलिस के जो
जवान हैं वो हथियारों से यहाँ पर लैस हैं। तो इस तरह से जो है पूरे पंजाब को अलर्ट पे डाल दिया गया है। जिस तरह से आरपीजी अटैक हुआ है, तरन तारण के पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है, उसके बाद सुरक्षा बल अब किसी भी तरह की चूक जो है वो नहीं चाहते और यही कारण है कि अब सुरक्षा को बढ़ाते हुए हर एक गाड़ी की गहन तलाशी की जा रही है। Gursimran, when we talk about terrorism and such terror attacks, well, earlier also there was the Mohali attack, and you had said earlier that there were similarities in this attack and the attack which took place at the intelligence headquarters there at Mohali. Tell us more about that. Also, about the comment coming in from the BJP, if we look at Manjinder Singh Sirsa, what he said that these attacks are seeing a rise after the Aam Aadmi Party government came into power. You also mentioned how the state government is taking some steps, that Bhagwant Mann, Chief Minister, also met the Prime Minister in this regard. So elaborate on that entire situation, how the state is dealing with it, and also about the similarities. This is not an isolated incident. देखिए, इसे एक अलग इंसिडेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि ये घटना हुई है जिसपे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ तो इससे जो है जांच की जाएगी। इसमें जो है ये काफ़ी संजीदा मसला है, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरह से आतंकी हमले पंजाब में हो रहे हैं और मोहाली का और ये हमला जो है दोनों आरपीजी से अटैक किए गए। बताया जाता है कि जो आरपीजी था वो मूविंग किसी व्हीकल में था या तो बाइक में था, क्योंकि पंजाब के मोहाली में जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था उसमें जो बाइक है उसको इस्तेमाल किया गया था आतंकियों की तरफ से जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाने के लिए। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि किसी मूविंग वाहन से जो है इस्तेमाल किया गया था, यूज़ किया गया था सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए। लगातार आप देखेंगे यहाँ पर पंजाब पुलिस की आपको एक विजिबल डिप्लॉयमेंट दिख जाएगी जो आम दिनों में नहीं रहती, क्योंकि अभी इससे कुछ देर पहले ही इन्हें ये कहा गया है कि पूरे इलाके को अलर्ट पर डाल दिया जाए। तमाम जो सीनियर अफसर हैं वो यहाँ पर इनके मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी बड़े आतंकी हमले को विफल किया जाए। सर, क्या आदेश आपको दिए गए हैं सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से? हम आदेश दिए गए हैं कि सभी गाड़ी को चेक करना जो इधर अमृतसर साइड से आ रही हैं। अमृतसर साइड से जो गाड़ी आ रही है हाँ, सभी को चेक करेंगे। सभी को। तो क्या आप उनकी डिटेल्स नोट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डिटेल कर रहे हैं नोट जी। तो ये डिटेल्स किसके साथ आप साझा करेंगे? साहब ने दसांगे, एसएसपी साहब ने। एसएसपी साहब के साथ। देखिए, ये वही इलाका है। मैं सरजीवन से कहूं कि अगर आपको सरजीवन वो राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाएं तो तरन तारण के सरहली से ये इलाका, ये जो रोड है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग वही यहाँ पर आता है। और यही कारण है कि हर एक जो वाहन है उसकी गहन तलाशी की जा रही है, यानी कि अगर वहाँ वाहन से कोई जो आतंकी हैं वो इस तरफ भागते हैं तो उन्हें पकड़ा जा सके। अगर वहाँ से कुछ सीसीटीवी से फुटेज मिलती है या फिर यहाँ पर किसी संदिग्ध पर शक होता है तो हर एक लीड को डेवलपमेंट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पंजाब पुलिस कर रही है, क्योंकि ये एक बड़ा आतंकी हमला है। हम ये बात सुबह से कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि इसे एकमात्र कोई इकलौती घटना के तौर पर देखना नहीं चाहिए, बल्कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है जो आतंकी संगठनों द्वारा किया गया है। और इस आतंकी हमले को विफल करने के लिए पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार यहाँ पे लगी है। हर एक वाहन की सघन तलाशी की जा रही है और पंजाब से आने वाले हर वाहन को पुरजोर तरीके से तलाशा जा रहा है ताकि किसी भी और गतिविधि को होने से या फिर उन संदिग्धों को, उन आतंकियों को जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।